very dangerous, please. Today, very dangerous day for the parliament and the country. Why I am moving this amendment? Let me know. Madam, how can I? Now, see, madam, I have carefully, please, sir, hello. Sir, I have carefully gone through the reasons and object of the bill. It is nothing but a joke, fraud and foul play. Second para, at the meeting of the Constituent Assembly held on 24th January 1950, its President Dr. Rajendra Prasad stated that song Vande Mataram, composed by Bankim Chandra Chatterjee, very important, composed by Bankim Chandra Chatterjee, that is full stanza, which played a historical role in Indian freedom struggle, shall be honored equally with the Jana Gana Mana. Madam, with due respect I am telling, I already spoke this bill. One person is important and one song is important for this country have a communal outlook. Why partition took place? One person, Savarkar, one song, Vande Mataram. I will demonstrate. No. This poem. Wait. Please hear me. Madam, legal issue. कि श्री ए राजा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 02 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ ना वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। जी बोलेंगे, माननीय मंत्री। तो मैं आधे मिनट में अपनी बात रखना चाहूँगा। यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। महोदय, किसी का राजगीत का भी सम्मान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करती है, मोदी की सरकार करती है। और सिर्फ आग्रह इतना जरूर है कि जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। तुष्टीकरण करने वाले लोग 1937 में जवाहरलाल ने इसी तुष्टीकरण के तहत वंदे मातरम के 2 छंद को स्वीकार कर लिया था और एक विचारधारा बनती थी जिसके कारण देश का बंटवारा हो गया था। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए, वंदे मातरम। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, We oppose this bill. This is a Hindutva agenda which is being brought in, masquerading as nationalism. It has been brought in against the people of this country, against the Indians of this country, against federalism. You cannot impose nationalism by bringing a law. You cannot make people respect a national song. माननीय सदस्य, आप सबके बीच हमारी एक महिला सांसद, वरिष्ठ सांसद बोल रही हैं। कृपया आप सुनिए, प्लीज अपनी अपनी सीट पर जाइए। We oppose this. This is against the federalism. This song, it was. The house is not in order. How much can I speak when the house is not in order?
place. You are disrespecting the Tamil people, but by bringing this bill, this goes against, this is an insult to Tamil Nadu and many states which have its own song. Why are you dividing this country? You are calling anybody who opposes you as anti-national. This government is anti-national. It is dividing this country by imposing this song on the people of this nation. Don't try to hide. This is not nationalism. We oppose, DMK opposes this bill, and this is undemocratic. It is against the parliament of this country to pass this bill in this din. Without a proper debate, you have to listen to the states. You have to listen to our माननीय voices. सदस्य, please What बोल रही gives हैं you आप, the और right अपनी to pass सीट a पर bill like बैठिए। this without discussion? We oppose this bill. This bill cannot be passed like this. It is against the people of this country. माननीय सदस्य श्री संबित पात्रा जी। माननीय अध्यक्षा जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण बिल पे आज मुझे बोलने के लिए आपने मौका दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, यह विधेयक कोई साधारण विधेयक नहीं है। नवंबर 2025 से नवंबर 2026 तक आदरणीय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के याद में 150वीं वर्षगांठ जो भारत की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मना रही है, उसमें इसी सदन में वंदे मातरम पे सघन चर्चा भी हुआ और आज इसी सदन में वंदे मातरम को किस प्रकार से एक कानूनन संरक्षण दिया जा सके, उसे सुरक्षित किया जा सके, ताकि हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे संस्थाओं में हमारे भारत के लोग बिना किसी बाधा के राष्ट्रगान के प्रति एवं राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान दिखा सके। आज इसका एक बहुत बड़ा दिन, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने बड़े बिल पे चर्चा हो रही है तो आप हाउस की परिस्थिति देखिए। जो राष्ट्र को समझ नहीं रहे हैं वो आज यहाँ आवाज कर रहे हैं। महोदया जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आश्वासन था, यह आश्वासन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिया हुआ आश्वासन था कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे, दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। मगर दुख के साथ कहना पड़ रहा है 76 वर्ष बीत गए। 76 वर्षों में गांधी परिवार की सरकारों ने, अटल जी ने चाहा था मगर गांधी परिवार के सरकारों ने गांधी परिवार को तो ऊपर रखा मगर वंदे मातरम। महोदय, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 सिर्फ एक विधायी संशोधन नहीं है, यह भारत की आत्मा, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों के प्रति हम सबकी प्रतिबद्धता है। महोदय, 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम के माध्यम से राष्ट्र गान को जो सम्मान मिला है, उसी प्रकार के सम्मान देने की बात 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने महोदय विचार के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी जब इसकी रचना कर रहे थे तो उस ऋषि ने कहा कि मैं वंदे मातरम के प्रभाव को देख पाऊं या न देख पाऊं, लेकिन एक समय आएगा इस देश के लोगों के ओठों पर वंदे मातरम का मंत्र होगा। उनके सपनों को आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। महोदय, एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प
है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम। महोदया, स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी की थी 21वीं सदी भारत की होगी। उनकी भविष्यवाणी थी कि भारत केवल आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भारत आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों के जरिए एक अपराजय वैश्विक शक्ति एवं विश्व गुरु बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र था। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसे पूरा कर रहे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। यानी एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और उसको दूसरा नरेंद्र पूरा कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को सुबह 6:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से संपूर्ण वंदे मातरम का गायन कराया था। इस प्रकार हमारे प्रथम स्वतंत्रता दिवस का शुभ आरंभ हुआ था। महोदय चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और खुदीराम बोस जब अपनी शहादत दे रहे थे तो उनके ओठों पर वंदे मातरम की गूंज थी। महोदय, मैं माननीय सदन से विनम्र निवेदन करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को सर्वसम्मति से पारित कर राष्ट्र की एकता, सम्मान और स्वतंत्रता संग्राम की अमर विरासत को और अधिक सुदृढ़ करने की कृपा करें। महोदय, राज्यसभा में भी इस पर काफ़ी चर्चा हुई है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्रश्न यह है कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार बर्वे जी, माननीय सदस्य ए राजा जी,